Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics. And today, first we discuss about some structures that is left in our last lecture, and then we straightforward go to the next topic, and that is X-ray diffraction and Bragg's law. So before starting that topic, let us just quick review of these structures. The first structure we have to study here is structure of diamond. Structure of diamond. Okay. So possibly you all anywhere studied this type of structure, the structure of diamond, and diamond actually exhibit two types of structure: the hexagonal closed type structure, sorry, not closed type but hexagonal type structure, and also cubic structure. But here we studied the cubic structure of diamond. So let's see it. So diamond exhibit both cubic and hexagonal type structure. Okay, the diamond cubic DC structure is most common. Diamond cubic structure, not hexagonal. Diamond cubic structure is most common and is described here. The space lattice of the diamond cubic structure is FCC, the face-centered cubic, with bases consisting of two carbon atoms. यानी उसके बेसिस में कम से कम दो कार्बन एटम होते हैं. वन लोकेटेड एट द लैटिस पॉइंट and other at a distance of 1/4 along the body diagonal. अभी स्ट्रक्चर इसका देखेंगे फ्रॉम लैटिस पॉइंट. ओके, ये लैटिस पॉइंट आप ओरिजिन पे कंसिडर करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. along the body diagonal. Okay, the unit cell of a DC structure is shown in the figure. Because the conventional unit cell of a FCC lattice contains 4 lattice point, it follows that conventional unit cell of a diamond structure contains 2 into 4 because of 2 basis atom. So 2 into 4 equals to 8 atoms. Oh, okay. This is the structure of diamond. This is the structure of diamond. There is no way to choose a primitive cell such that basis of diamond contains only one atom. Basis of diamond contains only one atom. ऐसा हम डिस्कस पहले भी करके आए हैं. So this is the crystal structure of a diamond showing the tetrahedral bond arrangement. ये जो bond arrangement देख रहे हैं आप, ये tetrahedral bond arrangement है. और ये एक्चुअली इस फिगर से हमें समझ में आता है कि किस तरह से प्लेसिंग होगी. तो देखिए, कार्बन एटम की प्लेसिंग देखिए. अगर ये एक लैटिस पॉइंट है तो बॉडी डायगोनल अगर आप ड्रॉ करेंगे, बॉडी डायगोनल जो ड्रॉ करेंगे आप, तो 1/4 पोजीशन पे दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और फिर 1/4 पोजीशन पे नेक्स्ट एटम आएगा. तो इस तरह की एटॉमिक पोजीशन है ये. एटॉमिक पोजीशन इन द क्यूबिक सेल ऑफ द डायमंड स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड ऑन ए क्यूबिक फेस. ओके, so the tetrahedral bonding characteristic of a diamond structure is shown in this figure. Each atom has 4 nearest neighbor. Each atom has 4 nearest neighbor and 12 next nearest neighbors. Okay, the diamond structure is relatively empty. This implies that this is the crystal structure of the category of loose packed structure. Loose packed structure. The packing efficiency of DC structure is only 34%. 34%, केवल 34% है. इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द not 46. Oh, okay, which is only 46 of the packing efficiency of FCC structure. Okay, 34% का मतलब ये हुआ कि ये जो 52 मिनिमम पैकिंग फ्रैक्शन है सिंपल क्यूबिक सेल का, उससे भी लूज्ड पैक्ड है. यानी बहुत सारा स्पेस यहाँ खाली मिलेगा आपको. ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज 4r is equals to √3. This is a simple relation as we see in the case of FCC, I think. So this is all about the
diamond structure. Let us see one other structure, and that is sodium chloride structure. Sodium chloride structure. Okay. So sodium chloride structure is consist of an equal number of sodium and chlorine ion placed at alternate distances in such a way that each ion has 6 of the other kind of ion as the nearest neighbor. Okay. You see here, sodium chloride NaCl consists of an equal number of sodium and chlorine ions placed at alternate points. Alternate. Say this is chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium. किसी भी डायरेक्शन में चलिए, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम. इस डायरेक्शन में चल के देखिए, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम. किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में चल के देखिए तो अल्टरनेट डिस्टेंसेस पे आपको, अल्टरनेट प्लेसेस पे आपको क्लोरीन और सोडियम एटम मिलेंगे. ओके. सो सोडियम क्लोराइड consist of an equal number of sodium and chlorine ions placed at alternate points of a simple cubic lattice in such a way that each ion has 6 of other kind of ions as nearest neighbor. Okay. This structure can be described as a face-centered cubic lattice with bases consist of a sodium ion and a chlorine ion separated by 1/2 of the body diagonal of a unit cube. Okay. This is the structure of sodium, and in this crystal structure of NaCl, the position of sodium and chlorine ion is this type. Na is this and Cl is this. Okay. So this is all about the crystal structure. This is all about the basics of solid state physics. Basics of solid state physics, and from today's onward we will start our main syllabus. Although these all topics, all basics are needy to explain the coming concept in solid state physics, but these are all basics, and it is very possible in examination that I think no question is asked from this section. It is very possible, but these are all basics. What is space lattice, unit cell, primitive unit cell, beginner size cell, basis, lattices, 2-dimensional, 3-dimensional, loose packed, closed packed structure, what is SCP, FCC, BCC, SC, DC and NaCl structure. These are all basics, and let us start our main syllabus through this topic. And the topic is this. X-ray diffraction and reciprocal lattice. X-ray diffraction and reciprocal lattice. So पहले सेक्शन में हम यहाँ एक्चुअली ये यूनिट नंबर 2 है आपके सिलेबस की, यूनिट नंबर 2 ऑफ योर सिलेबस. और यूनिट नंबर 2 में भी जो पहले हम कवर करने वाले हैं, मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप यहाँ केवल टॉपिक स्टडी करें. हाँ, कि मैंने पहले बेसिक्स अपने क्लियर किए और उसके बाद मैं सीधा टॉपिक स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस. एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस. उसके बाद सिलेबस से निगाहें हटा लीजिए. सिलेबस में बहुत उलट पुलट दिया हुआ है, तो वहाँ से बिल्कुल नहीं जाना, उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना. हालांकि टॉपिक्स वो सारे क्लियर होंगे, बस किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो नहीं दिए हुए हैं जहाँ से आप उसे किसी बुक से स्टडी कर सकें. तो ज़रूरी है कि आप इस वे में उसको स्टडी करें. सो पहले हम जो यहाँ टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा. एक्सरे यहीं हम ब्रैग्स लॉ से परिचय करेंगे, और इसके बाद हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स और रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, इसके बारे में स्टडी करेंगे. देखिए, ये जो वर्ड्स हैं लैटिस, ये अब आपके लिए बहुत, लेकिन अगर आपको शुरू में ही ये कह दिया जाता कि हाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ो और रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ो, जब आपको लैटिस ही नहीं पता था तो रेसिप्रोकल लैटिस कैसे स्टडी करते हैं आप लोग?
यू नो। एक्सरे डिफ्रैक्शन में आप देखेंगे एटॉमिक प्लेन्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो जब आपको पता ही नहीं है कि अरेंजमेंट इस तरह का होता है एटम्स का किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो फिर आप कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन वहाँ स्टडी कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस सीरीज में, जिस सीरियल में यहाँ स्टडी किया जाएगा सिलेबस, उसी सीरियल में आप प्रिफर करें, क्योंकि नहीं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, सो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्चुअली हुआ क्या, ये वर्ड तो आपने कहीं ना कहीं, ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड वर्ड है एक्चुअली। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ओके, तो डिफ्रैक्शन के बारे में, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें पर्दे पर कैसे मिलता है, ओके, और ये फिनोमिना भी कहीं ना कहीं आपने जरूर स्टडी किया होगा। डिफ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली, डिफ्रैक्शन क्या है कि अगर आप किसी लाइट, अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो डिफ्रैक्शन क्या है कि अगर आप किसी लाइट रे को, क्योंकि लाइट रे का एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट ये है कि लाइट रेज आर ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। ओके, अगर आप उसके रास्ते में, उस लाइट रे के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रख दें, और तो लाइट रे क्या होती है, उस ऑब्स्टेकल के किनारों पे मुड़ जाती हैं, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। या फिर दूसरा तरीका डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्राप्त करने का ये है कि अगर आप किसी भी फाइन होल में से लाइट रे को गुजारें, तो लाइट रे उस जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है हमें केवल वही नहीं मिलता। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जब लाइट रे को आप किसी फाइन होल से गुजारें तो वो स्ट्रेट पाथ से गुजर के सीधे पर्दे पर वो मिल जाना चाहिए था, पर पर्दे पे जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलता है उससे स्पष्ट होता है कि स्ट्रेट पाथ में उसने ट्रेवल नहीं किया, और कुछ जगहों पे इंटरफेरेंस की वहाँ फिनोमिना हो जाती है, और कुछ जगह पे हमें डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और कुछ जगह पे हमें डिफ्रैक्शन मिनिमा मिलता है। और इस तरह का एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ क्लास में भी किया गया है। ओके, सो एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी एक्स रेज का डिफ्रैक्शन हमें यहाँ स्टडी करना है, और यहीं से हम इवोल्व करेंगे ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, ब्रैग्स ट्रीटमेंट, ब्रैग WL ब्रैग ने कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन को एक अलग फिनोमिना, एक अलग नजरिए से देखा, तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक्सरे आती है, बहुत सारे एटम्स वहाँ मौजूद हैं चूंकि किसी भी सॉलिड के अंदर, और उन एटम्स से वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग करती है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग करने से जो एनर्जी एक्सरे प्रोवाइड कराती है उस एटम को, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं अपनी मीन पोजीशन के चारों तरफ, यानी वो भी एक सोर्स की तरह काम करने लग जाते हैं। एक्सरेज प्रोडक्शन के, एक्सरेज को प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी एक सेकेंडरी एक्सरेज हमारे पास मिल जाती है। एक वो एक्सरे जो इंसिडेंट किसी एटम के ऊपर इंसिडेंट हुई थी, और दूसरा एक्सरे वो जो उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एमिट होती है जिन्हें जो इनिशियल एक्सरे है वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं, एक्चुअली एटम्स का हमने क्या सीरियल, हमने स्पेस लैटिस में पढ़ा कि स्पेस लैटिस एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स का इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हम पढ़ के आए हैं स्पेस लैटिस के बारे में। ओके, अब इन स्पेस लैटिस के ऊपर आप बेसिस को प्लेस कर दीजिए, यानी ये बन गया मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक एटम को प्लेस करेंगे मोनो एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 2 को करेंगे डाई एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 3 को करेंगे ट्राई एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसी तरह से कुछ भी आप 100 भी कर सकते हैं, 100 एटम भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। चूंकि नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस तो हमारे पास ओनली 14 ही, उन्हीं में चाहे हम हेक्सागोनल चूज करें चाहे हम सिंपल क्यूबिक चूज करें, उन्हीं में से हमें चूज करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने से मेरा क्या मतलब हुआ कि मेरे पास बहुत सारे रेगुलर अरेंजमेंट होंगे एटम्स के, इस तरह से।
इस तरह से यहाँ भी एटम, यहाँ भी एटम, यहाँ भी एटम, यहाँ इस तरह रेगुलर अरेंजमेंट होगा पूरा एटम्स का। एक्सरे यहाँ से आती है और किसी एटम पे टकराती है, टकराने से क्या होगा, इस एटम को वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगी और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इनइलास्टिक स्कैटरिंग जब करेगी, किसी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, तो ये जो अब इलेक्ट्रॉन को एटम, इस एटम को एनर्जी मिली है, इससे इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और वो भी एक्सरेज को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है जनरल एक्सरे स्कैटरिंग। ओके, अब यहाँ किस तरह से एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो किस तरह से मिलता है, उसे हमें यहाँ स्टडी करना है। ओके, सो लेट्स सी दिस। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे लाइक अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम्स। Okay, because of their shorter wavelength, X-rays are scattered by adjacent atoms in crystal, which can interfere and give rise to the diffraction effects. Okay, when X-rays enter into a crystal, each atom acts as a diffraction center. कहीं से भी diffraction हो सकता है, and crystal as a whole act as a three-dimensional diffraction grating. The diffraction pattern so produced can tell us much about the internal arrangement of the atoms in the crystal. Okay, in order to visualize this, let us consider a crystal made up of equidistant parallel planes of atoms. ये जरूरी है आपको समझना कि ये हम पॉसिबिलिटी यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज दिस, let us consider a crystalline solid made up equidistant parallel planes। और ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जब आप जर्नल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आपको इक्विडिस्टेंस पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स ही मिल जाएं। ये तो बहुत आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जबकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो जो एटॉमिक स्पेसिंग जिसको हम बोलते हैं, वो पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी वेरी करता है, उनके ओरिएंटेशंस भी वेरी करते हैं, जो एक्चुअल अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एक आइडियल कंडीशन को यहाँ एज्यूम किया गया है कि हमारे पास ऐसे पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स से इक्विडिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स हैं atoms. So let us consider a crystal made up of equidistant parallel planes of atoms with interplanar spacing d. उनकी जो interplanar spacing है वो d है। Now consider a monochromatic X-rays. Monochromatic means mono and chromatic. Chromatic word is coming again from the optics. And mono, di, tri, tetra, penta, hexa, whatever the monochromatic. Chromatic means color. Color means wavelength. Wavelength means frequency. Okay, wavelength कहीं है, frequency कहीं, दोनों एक ही बात है। So monochromatic का मतलब है एक कलर वाली कोई एक्सरे। Okay, monochromatic X-ray beam of wavelength lambda having a common wavefront falls at an angle of theta, अभी फिगर को देखेंगे, on these planes. Okay, each atom scatters the X-ray more or less uniformly in all directions. Uniformly on all directions. Okay, but because of periodic arrangement of the atoms, the scattered radiation from all the atoms in a set of planes is in phase, and hence that is there this scattering is into the certain direction, and where they interfere constructively. That is the point to be noted. Where they interfere constructively. Okay, in all other directions there is destructive interference. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और बाकी जितनी डायरेक्शंस हैं वो सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायरेक्शन होती है। अभी हम फिगर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कंसीडर टू ऑफ द इनकमिंग एक्स रेज OE एंड O' A।
inclined at angle theta with the topmost plane of the crystal and scattered in the direction of AP and EP dash. Okay, let us see this. This is my figure, and this is an ideal crystal structure in which this is my first layer of atoms, this is my second layer of atom, this is my third layer of atoms, and there is these atomic planes. This is my first atomic planes gives by some indices, Miller indices, HKL. Okay, this is another atomic plane with indices HKL, and this is next one, and the interplanar spacing between these two, first and second plane, is D, and between second and third plane is D. Okay, this is the situation. So these are my atoms, these arranged in the periodic arrangement in the atoms. Okay, and this is my first X-rays, this is my second X-rays. Okay, and because when this X-ray is incident on this atom or this atom or this atom, this atom scattered this X-ray in all directions, but because the these from all directions, because the scattered radiation from all atoms in a set of planes is in phase, that's why they scattered in a particular direction where they meet constructively, interfere constructively, and into all other directions they meet destructively, or the interfere is destructive. ओके, तो ये मेरे पास एक वेव ये आई, इस एटम से टकराई और इस वे में ये डिफ्रैक्ट हो गई, ये मेरे पास स्कैटर हो गई, और ये मेरे पास एक दूसरी एक्सरे है जो इस एटम से टकराती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है. ओके, सो एक्चुअली जो O डैश ए है ये मेरे पास इंसिडेंट एक्सरे है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे स्कैटर्ड वेव मिली है, स्कैटर्ड रे मिली है, वो है ए पी, और ये मेरे पास एक दूसरी इंसिडेंट एक्सरे है ओ ई जो इस एटम से टकराती है और इस डायरेक्शन में ई पी डैश डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है. और जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल है स्कैटर्ड एंगल के. इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द स्कैटर्ड एंगल. ओके, दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, आगे की जो स्टडी है वो कैसे है कि ये भी तो हो सकता है कि आल्सो एट एन एंगल ऑफ थीटा विद प्लेन, सिंस द पाथ लेंथ ऑफ रेज ओ ई पी डैश ओ ई पी डैश and O dash AP are the same, they arrive at PP dash respectively in phase, and that's why we can say that they meet or interfere constructively. Okay, in order to see the effect of an adjacent plane, let us consider incoming beam O dash C. This O dash C. Why? In order to see the effect of an adjacent plane, ये दूसरे प्लेन के अब हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं. Let us consider an incoming beam of O dash C. यहाँ से O dash C और इस एटम से टकराता है और इस डायरेक्शन में CP डायरेक्शन में ये वेव स्कैटर्ड हो जाती है. ओके, so in order to see the effect of an adjacent plane, let us consider the incoming beam O dash C and scattered rays CP dash, CP double dash. This, if ED and ED, not here is some mistake. If ED and ED are parallel to the ED and EB, this is EB.
EB and ED are parallel to the incident and the scattered wavefront respectively, then the total path O dash C P double dash, O dash C P double dash, this path coming on to this is the incident X-ray which strikes on this atom and is scattered in this way. Okay, O dash C P dash is longer than the path OEP dash, okay, by an amount of path difference. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये जो दो एडजेसेंट एटम्स हैं, एडजेसेंट लेयर्स हैं एटम्स की, एक रे ये है इस तरफ डिफ्रैक्ट होती है और दूसरी रे ये है जो इस एटम से जो दूसरी जो एटॉमिक लेयर है मेरे पास उसके एटम से डिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाता है। तो इन दोनों रे के बीच में OEP डैश और O डैश CP डबल डैश, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। आपको पता है कि पाथ डिफरेंस को हम इस तरह से डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, BCD। कैसे निकाला, देखिए OEP डैश ये पाथ ट्रेवल किया है किसने, पहली रे ने, और जो सेकंड रे का जो सेकंड एक्सरे है वो इस एटम पे आती है और टकरा के इस डायरेक्शन में वापस जाती है। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये वाली ये रे, ये कितनी होगी, BCD के बराबर, यानी BCD। यही तो, इतना ही तो, ये इतना ही तो रास्ता एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है, इतना ही तो, ओके, BCD। and because BCD is equals to 2BC, because BC is equal to CD, that's why BCD is equals to 2BC, and from right angle triangle EBC, this is my right angle triangle EB and C, where angle B is right angle and this is theta, so that's why this is my hypotenuse EC, this is my long BC and this is my base EB। तो साइन थीटा हम कैलकुलेट करते हैं अगर इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा BC over EC, hence long over hypotenuse, which usually sin theta. So sin theta is equal to BC over EC. Okay, and you know that what is EC? EC is D, equals to the interplanar spacing. So sin theta is equals to BC over D, and we have to calculate. We calculate here BC equals to D sin theta. Hence the path difference between the two rays is 2BC, that is BC has this value D sin theta, hence 2D sin theta. Okay, if the two consecutive planar scatter in phase with each other, then we know that the path difference must be an integral multiple of lambda, integral multiple of wavelength. Okay, this is integral multiple of वेवलेंथ लैम्बडा। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, ये रिजल्ट कहाँ से एक्वायर किया हमने, ये हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं। जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं तो जो पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ के बीच में, एक्चुअली ये जो रिलेशन आता है ये वेवलेंथ के बीच में नहीं आता, ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में आता है। ये जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है दो वेव के बीच में, तो ये जो रिलेशन आता है हमारे पास, ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के रिलेशन से आता है। तो जो पाथ डिफरेंस जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हमने बताया कि ये दोनों, ये वेव भी यहाँ से और ये वेव भी, दोनों एक ही फेज में वहाँ पहुँचती हैं। जब एक फेज में होंगी तो दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो इतना होगा, डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। ओके, और पाथ डिफरेंस हम ये भी स्टडी करके आए हैं, दैट डेल्टा इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। तो जब हम ये भी स्टडी करके आए हैं और ये भी स्टडी करके आए हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड वी हैव 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा।
and this equation number 3, known as Bragg's law of X-ray diffraction or Bragg's treatment of X-ray. Actually, Bragg converted the problem of X-ray diffraction or diffraction of X-ray by the atoms or atomic planes to the problem of reflection of X-rays. This is the intelligence or quality of Bragg. Okay, so this equation number 3, is known as Bragg's law. Okay, the diffracted beam thus fulfill the geometry of a reflection but arise only for a certain discrete value of theta for which Bragg's law is fulfilled. ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन आपको किसी भी एंगल के लिए, ये जो इंसिडेंट एंगल है थीटा, ये किसी भी आर्बिट्री एंगल पे आप इंसिडेंट कर दीजिए तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल ही जाएगा। नहीं, केवल उन्हीं के लिए आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, उसी इंसिडेंट एंगल के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा जिसके लिए जो स्कैटर्ड वेव हो वो एक ही फेज में आए। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिसपे किसी भी आर्बिट्री एंगल पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन इज दिस, एंड the diffraction beam thus fulfill the geometry of a reflection but arise only for a certain discrete values of theta for which Bragg's law is fulfilled. Okay, thus Bragg converted the problem of diffraction of X-ray by atoms into the problem of reflection of X-rays by parallel atomic planes. Okay, और यहाँ से आगे जो टॉपिक है उसका बेस भी है ये लाइन। एक्चुअली वान लीव ट्रीटमेंट हमें आगे पढ़ना है, और वान लीव ट्रीटमेंट में उसने क्या किया, ये जो लाइन है कि ब्रैग्स कन्वर्टेड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय द एटम्स इनटू द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे बाय एटॉमिक पैरेलल प्लेन्स, यहाँ ही से फिर इसी लाइन को मॉडिफाइड किया वान लीव ने, और वहाँ से हमें लीव इक्वेशन मिली जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। पर लेट अस सी दिस टॉपिक। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है +1 रहती है। ओके, अगर इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास आता है दैट n लैम्डा ओवर 2d शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इंडिकेट दैट लैम्डा मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अगर ऐसा होगा तो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा ही नहीं। लैम्डा को भी जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ कैसी है, और जिस सैंपल को आप एक्सपोज कर रहे हैं एक्सरेज से उसका एटॉमिक स्पेसिंग जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो कैसी है। मैक्सिमम ये कंडीशन दैट लैम्डा मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ट्वाइस ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेस। इससे ज्यादा अगर होगा नहीं मिलेगा आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके, तो ये भी एक कंडीशन है कि लैम्डा जो एक्सरेज आप यूज करें उनका जो वेवलेंथ है वो जिस एटम को, जिस सॉलिड को, जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एक्सपोज कर रहे हैं एक्सरेज से, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के डबल से यानी ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, देन लैम्डा शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू d। इससे इंटरप्लेनर स्पेसिंग से छोटा ही आप यूज करें वेवलेंथ को तो ही आपको ब्रैग रिफ्लेक्शन मिल सकता है, Okay, so this is all about the X-ray diffraction and Bragg's law, and meet you into the next one. Thank you.